Good morning, students. I think two chapters, first and second, real number and polynomials, you have studied online study. Now I have to go with chapter 3. Chapter 3 is linear equations in two variables. This is the lecture number 1, first lecture of this chapter. Students, from very beginning, from linear equations in one variable, you are studying from class 6. In class 6, 7, 8, you have studied linear equations in one variable. Also applications of linear equations, word problems, you form the equations and solve it. In class 9, you studied about linear equations in two variables. But in class 9, there were only single equations. You had studied about the single equations. In class 10, what have to do? You have to study about the pair of linear equations. Means linear equations in two variables and pair means two equations. उसके linear equation के solution के बारे में, definition के बारे में, उसका ग्राफ ड्रा करने के बारे में, ये सब आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा. तो 9th क्लास में आप पढ़े हैं सॉल्यूशन के बारे में भी. यू हैव स्टडीड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ linear equation, about the graphical representation. If a single equation is given, you can draw the graph of the linear equation. So first of all, I am going to define what is linear equations. So this is linear equation in two variables. Definition is an equation of the form ax plus by plus c equal to 0. An equation of the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0, b not equal to 0. This is the definition. An equation of the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0, b not equal to 0. Here are two conditions, a not equal to 0 and b not equal to 0. Suppose that this is equation, if a equal to 0, then this term will be a into 0, this is 0. So this equation becomes by plus c only, and this is linear equation in one variable. There is only y, a single variable. So if a equal to 0, then this equation is converted into linear equation in one variable, and the variable is y. Similarly, suppose that if b equal to 0, then this term 0 into y will be finished. Therefore, the equation will be converted ax plus c equal to 0, and this equation is also an equation in one variable. So this is the condition, a and b both should not be equal to 0. Now consistent system. What is consistent system? System का मतलब कि दो linear equation साथ साथ हम जब लेते हैं तो उसको system बोलते हैं. Consistent system, a system of simultaneous linear equations. एक ही साथ दो इक्वेशन लेते हैं, is said to be consistent which have at least one solution. अगर हम दो इक्वेशन ले रहे हैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, के कम से कम एक सोल्यूशन हो तो उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन. अगर उसका कम से कम एक सोल्यूशन हो, एक से अधिक भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक हो. और इनकंसिस्टेंट क्या है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट व्हेन इट हैज़ नो सोल्यूशन. अब इनकंसिस्टेंट को बोलेंगे जिसमें कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं. इस तरह से दो सिस्टम यहाँ पे बना, एक कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब
जिसमें कम से कम एक सलूशन हो, इनकंसिस्टेंट जिसमें कोई भी सलूशन नहीं हो। और सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन एक ही साथ हम लेते हैं, तो इसलिए ये सिस्टम हो गया। अब 9th क्लास में आप लोगों ने ग्राफ ड्रा किया है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या करते हैं हम? किसी भी इक्वेशन के दो सलूशन हम लेते हैं, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट, और फिर उनको ड्रा करते हैं। तो ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आता है। तो वो तो सिंगल लाइन ड्रा करने का है। सपोज करो अगर हम 2 लाइन ड्रा करें, क्योंकि 10 क्लास में 2 लाइन का पढ़ना है आपको, तो अगर हम 2 लाइन ड्रा करते हैं तो ऐसे हालत में वहाँ पे 2 केस होते हैं, 3 केसेस। व्हेन वी ड्रॉ टू लीनियर इक्वेशंस देयर विल बी 3 केसेस। 3 केस है। अब कौन कौन केस है? केस 1 में होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। केस 1 में क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन है, उसको ड्रा करें और वो दोनों लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। केस 2 में क्या है? दिस इज पैरेलल लाइंस। क्या है? पैरेलल लाइंस। अगर 2 लीनियर इक्वेशन को हम ड्रा करें और दोनों पैरेलल लाइन आ जाए, एक लाइन दूसरे के पैरेलल, तो वहाँ पे क्या होगा? इस हालत में कोई भी कॉमन पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर। फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइन था, एक कॉमन पॉइंट मिल रहा था, तो इसी कॉमन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या हो जाता है? सलूशन होता है। और केस 2 में पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब अगर हम 2 लीनियर इक्वेशन को ड्रा करें और दोनों का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगा और ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए, तो इस केस में देयर विल बी नो एनी कॉमन पॉइंट, सो वी कैन नॉट गेट द सॉल्यूशन। इन दिस केस वी कैन नॉट गेट द सॉल्यूशन since we do not obtain any common point. And in third case you can see, this is case number 3, कोइंसिडेंट लाइंस। 2 स्ट्रेट लाइन को अगर हम ड्रा करें तो एक लाइन का ग्राफ जहाँ से जाता है उसी ग्राफ पर दूसरा लाइन भी जाए, मतलब कोइंसाइड कर जाए। द ग्राफ ऑफ 2 लाइंस, 2 इक्वेशंस कोइंसाइड, देन वी से दैट these are coincident line, and in this case there are infinite number of solution। क्योंकि दोनों लाइन मिलके क्या हो जाती हैं? एक ही लाइन हो जाती है, इसलिए इस केस में हमको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ जो होता है वो क्या है? 3 तरह से आ सकता है। 2 लीनियर इक्वेशन को अगर हम ड्रा करें तो क्या होगा? 3 केस। पहला केस इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, इंटरसेक्ट करें तो कॉमन पॉइंट हमको मिलेगा, और वहीं उसी कॉमन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड पैरेलल लाइन। दोनों ग्राफ क्या हो जाए? यहाँ पे है पैरेलल लाइन। जब पैरेलल लाइन हो जाएगा तो पैरेलल लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ऐसे हालत में क्या मिलेगा? कोई भी हमको सलूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। और थर्ड केस क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशंस कोइंसाइड। दोनों इक्वेशन का ग्राफ पहले कोइंसाइड कर जाता है, मतलब पहले इक्वेशन का जो ग्राफ रहेगा उसी के ऊपर दूसरे इक्वेशन का भी जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि वहाँ पे दोनों इक्वेशन मिलके एक ही इक्वेशन बन जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आपको कि ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, किस तरह का ग्राफ हो सकता है।